Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 21 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are feeling confident now in programming skills and you are enjoying the course Data Structure. अभी आपको जो है हमने अब प्रैक्टिस सॉर्टिंग हमने ख़त्म कर ली है और उम्मीद है कि आपने उसकी खासी एक्सरसाइज कर ली होगी और आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा इन दी डेवलपिंग द एल्गोरिदम्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, और उसके साथ साथ आपने कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिटेल से पढ़ा और समझा होगा. As per our routine, we will start the today's lecture with the summary of the last lecture. Last lecture में हमने sorting की आखिरी 2-3 टेक्निक्स आपको बताई थी. We started with the comparison of merge sort and quick sort. हमने इसमें ये कहा था कि in the worst case जो merge sort है it does about 39% fewer comparisons than quick sort does in the average case. यानी कि worst case में merge sort की comparisons जो हैं वो around 39% better fewer हैं than quick sort. Merge sort always make fewer assumptions and fewer comparisons than quick sort, except in extremely rare cases when they tie, where merge sort worst case is found simultaneously with quick sort's best case. In terms of moves की जब हमने बात की थी data movement की, तो merge sort's worst case complexity is then log n the same complexity as quick sort's best case, and merge sort's best case takes about half as many iterations as the worst case. Recursive implementation of merge sort हमने कहा था it makes 2n-1 calls in the worst case compared to quick sort's n. Thus, merge sort has roughly twice as much recursive overhead as quick sort. क्योंकि उसने merging भी करनी होती है, इसलिए recursion का उसका जो है वो 2n-1 है. However, उसकी जो iterative non-recursive implementation of merge sort avoiding method call overhead are not difficult to code, and merge sort's most common implementation does not store in place. Sorting in place में नहीं करती. Therefore, the memory size of the input must be allocated for the sorted output to be stored in उसके हवाले से. तो ये हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था merge sort और quick sort का. फिर हमने कल जो नई sorting टेक्निक पढ़ी थी, that was the shell sort. Shell sort was invented by Donald Shell in 1959. Shell sort is also called, इसको हम बाज़ लोग diminishing increment sort भी कहते हैं. Basically, it is an in-place comparison sorting algorithm. It improves upon bubble sort and insertion sort. How? By moving the out-of-order elements more than one positions at a time. Basically, exchanging sort की generalization है, such as insertion or bubble sort. By starting the comparison and exchanging of elements with elements that are far apart before finishing with the neighboring elements. जो दूर होते हैं उनको पहले ये sort कर लेता है, neighboring को बाद में करता है. Starting with far apart elements, you can move some of out of place elements into position faster than the simple nearest neighbor exchange, and this algorithm sorts the sublist of the original list based on incremental value और sequence number, या इसको हम gap number कहते हैं k. Common sequence numbers या gap जो है वो 5, 3 और 1 है, but there is no proof, mathematical proof इसका हमारे पास नहीं है कि that these are the best sequence numbers. Each sublist contains every kth element of the original list. फिर अब इसके बहुत सारे different algorithms हैं, तो हमने using Markov gap sequence with an inner insertion sort, उसका हमने algorithm देखा था कि we will sort an array, जिसको let's suppose आप कहते हैं कि list है array का नाम, and it has element from 0 to n-1.
और इसके साथ हमने गैप्स कुछ डिटरमिन किए, उसमें उन्होंने गैप्स डिटरमिन किए हुए हैं 701, 301, 132, 57, 23, 10, 4 and 1. For each gap which is present in the gaps array, हम क्या करेंगे, हम इंसर्शन सॉर्ट करेंगे फॉर ईच गैप साइज। और उसके लिए हमने एक डबल नेस्टेड लूप लगाया था जिसका आउटर था कि फॉर आई इक्वल टू गैप आई लेस देन एन माइनस आई लेस देन एन एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। हम क्या कर रहे थे कि उसमें ए ऑफ आई जो भी आता था उसको हमने एक टेम में रख लेना, और इनर रूप में हम कर रहे थे कि फॉर जे इक्वल्स आई, जे ग्रेटर देन गैप एंड ए ऑफ जे माइनस गैप इज ग्रेटर देन टेम्प। तो हम क्या कर रहे थे कि हमने कहा था कि जे विल बी इक्वल टू जे माइनस गैप, और सिर्फ हमने यही कहा, और उसके अलावा हमने करना था कि ए ऑफ जे विल बी इक्वल टू ए ऑफ जे माइनस गैप। और इस जब ये लूप इनर लूप टर्मिनेट होती थी तो हम ये कहते थे कि टेम्प विल बी असाइंड टू ए ऑफ जे। The sub-arrays that shell sort operates, they are initially short, later they are longer but almost ordered. In both cases insertion sort works efficiently. मगर इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि shell sort is unstable. It may change the relative order of the elements having equal value, but it has a natural behavior in that it executes faster when the input is partially sorted. Basically, shell sort is a simple extension of insertion sort. It gains speed by allowing exchanges with elements that are far apart. Shell sort is an improved version of insertion sort. In the shell sort, a list of n elements is divided into k segments, where k is known as the increment. What does this means is that instead of comparing adjacent values, we will compare values that are distance of k apart from each other. We will shrink k as we run through our algorithm. There are many schools of thought on what the increment should be in the shell sort, and we have to note that just because an increment is optimal in one list, it might not be optimal for another set of list. फिर हमने इसकी कम्प्लेक्सिटी भी देखी थी। हमने कहा था कि इसकी जो बेस्ट केस परफॉर्मेंस है वो बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n है। एवरेज केस परफॉर्मेंस जो थी वो इसकी n और log n का स्क्वायर, या उसको हम कह सकते थे कि बिग ओ इन द ऑर्डर ऑफ a पावर 3/2 या a पावर 1.5। वर्स्ट केस परफॉर्मेंस जो थी इट डिपेंड्स ऑन द गैप सीक्वेंस, मगर जो बेस्ट नोन है दैट इज n टू द पावर ऑफ 3/2। वर्स्ट केस स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो थी वो उसकी कांस्टेंट थी o टू द ऑर्डर ऑफ 1, और ये ऑक्सिलरी के लिए थी where n is the number of elements to be sorted. The second sort which we discussed was the radix sort. The key idea is that sort on the least significant digit. ये digit के ऊपर हम जाते थे LST, and the remaining digits in the sequential order. The sorting method used to sort each digit must be stable. If we start, हम इसको most significant digit से भी start कर सकते हैं, but we will need extra storage. Based on examining digits in some base B to numeric representation of items, और जिसको आप keys कहते हैं, तो least significant digit radix sort, it processes digit from right to left. It is used in earlier punch card sorting machines. It creates grouping of items with same value in the specified digit, collect in order and create grouping with next significant digit. Start with the least significant digit, separate keys into groups based on the value of current digit. Make sure not to disturb ordinal order of keys. Combine separate groups in ascending order, repeat scanning digits in the reverse order. Each digit requires n comparisons, so the algorithm is O to the order of n. The preceding lower bound analysis does not apply because radix sort does not compare the keys. इसके एल्गोरिथम में हमने देखा था कि की आइडिया है कि सॉर्ट द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट, और हमने इसमें कहा था कि फॉर i to d स्टेबल सॉर्ट a on digit i, और बेसिकली d will be the total number of digits. It sort by the least significant digit first, इसको काउंटिंग सॉर्ट के हवाले से
numbers with the same digit go to the same bin. Reorder all the numbers. The number in bin 0 precedes the numbers in bin 1, which precedes the number in bin 2, and so on. Sort by the next least significant digit. You will continue this process until the numbers have been sorted on all k digits. You increase the base R, decrease the number of passes. So running time जो हमने ये कहा था कि k passes over the number means that is the k counting sort with range being 0 to R. और each pass will take 2n time, so the total is 2nk, और हम इसको कहते थे n into k. Big O in the order of n dot k, where R and k are constants, और with big O to the order of n आ जाता था. The radix sort is not based on comparison. The values are used as array indices. If all n inputs हमने कहा था कि values are distinct, then k जो है वो big omega log of n. For example, in binary digits to represent 8 different numbers, we need at least 3 digits. Thus, the running time of radix sort also becomes n log n. इसका हमने फिर analysis भी किया कि in radix sort preferable to a comparison sort based algorithm such as quicksort. क्योंकि radix sort running time जो है वो o to the order of n है. quicksort का जो है वो n log n है. The constant factors hidden in the big O notations they differ. Radix sorts make few passes than the quicksort, but each pass of radix sort may take significantly longer. Assumption हमने ये ली थी कि input has d digits ranging from 0 to k. The basic idea है to sort elements by digits starting with the least significant. Use a stable sort like bucket sort for each stage, and each pass over n numbers with one digit takes big O to the order of n plus k. So total time is dn plus dk. When d is constant and k is equal to O to the order of n, it takes O to the order of n times. Advantages क्या है कि जो radix sort है, it is fast, it is stable, and it is simple. But it doesn't sort in place. The last sorting algorithm that we discussed last time was the bucket sort. It works by partitioning into array into a number of buckets. Each bucket is then sorted individually, either using a different sorting algorithm or by recursively applying the bucket sorting algorithm. It is a distribution sort and is a cousin of radix sort in the most to least significant digit flavor. Assumption क्या है that key are in the range 0 to n. Basic idea है कि you will create n linked list जिसको हम buckets कह रहे हैं to divide interval 0 to n into sub intervals of size 1. Add each input element to the appropriate bucket, and afterwards you will concatenate the buckets. Expected total time is n plus k, where n is the size of original sequence, and if big O is order of n, then the sorting algorithm is O to the order of n. It also works on real and floating point numbers. Method क्या था कि इसका हमने कहा था कि keys are to be sorted over uniformly distributed over a known range, let's say 1 to m, and then you will set up the buckets where each bucket is responsible for an equal portion of the range. You sort items in the bucket using the insertion sort. You concatenate sorted list of items from buckets to get the final sort order. Bucket sort is a non-comparison based algorithm, allocates one storage location for each item to be sorted, assigning each item into corresponding bucket. In order to bucket sort n unique items in the range 1 to m, we will allocate m buckets and then iterate over the n items, assigning each one to the proper bucket. Finally, loop through the buckets and collect the items, putting them into the final order. Bucket sort works well for the data set where the possible key values are known and relatively small, and they are on the average just a few elements per bucket. हमने इसका algorithm भी देखा था कि हम bucket sort करेंगे array को, और n will be the length of the array. For I equals to 1 to n, do insert a of I into the list n ai, उसका index हम लेंगे. For I equals 0 to n minus 1, do we will sort the list bi with insertion sort. And then we will concatenate the list b0, b1, so on up to bn minus 1 together in order. Time complexity भी हमने इसकी देखी. तो bucket sort की time complexity best case में O to the order of n है, average case में भी O to the order of n है,
वर्स्ट केस में इसकी O to the order of n square है, that is insertion sort on uniform keys, और अगर इंटीजर की हो तो n plus k है. In the end, we'll do some the comparison of sorting techniques when which sorting algorithm is preferable. It depends upon few characteristics such as characteristics of implementation of the underlying machine. Quicksort uses the hardware caches more efficiently. Radix sort using count sort doesn't sort in place, so when primary memory storage is concentrated and is concerned, an in-place sorting algorithm is preferable, and so quicksort is more preferable. फिर हमने आपको 256 और 2048N के ऊपर एग्जीक्यूशंस के साथ मैंने बेंचमार्किंग करके भी देखी थी. 6 टेक्निक्स को हमने कंपेयर किया था, जिसमें बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट. तो उसमें हमने देखा था कि सबसे अच्छा रिजल्ट क्विक सॉर्ट का था. So that was the summary of the last lecture. I sincerely hope that now the sorting techniques have been well clear to you. So we move on to our today's lecture. So in our today's lecture, we will not talk about the doubly linked list. हमारा पूरा lecture doubly linked list के ऊपर है. We'll concentrate on its concept, and then we'll discuss comprehensively on the operations on the doubly linked list, such as insertion, deletion, traversing, search. Implementation code भी देखेंगे, and finally हम एक और implementation double linked list की भी doubly linked list की देखेंगे with 2 pointers. तो let's start करते हैं. अब थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर पर ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे कि जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो हैं ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग. ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन मींस कि accessing each record exactly once for some processing, so that certain items in the record may be processed. This accessing and processing is sometimes we call it visiting the record. Visiting each record exactly once for some kind of processing. Searching means finding the location of the record with a given key value, or finding the locations of all the records that satisfy one or more conditions, and then you quit. Worst case में it becomes traversing, but best case में पहली ही attempt में आपको मिल सकता है. Inserting जो है, it's adding a new record to the structure, and deleting means removing a record from the data structure. So these are the major operations which are performed on all the data structures. Sometimes 2 or more operations, they may be used in a given sequence or a given situation. For example, we may want to delete the record with a given key, which means we first need to search for the location of the record, and then we have to apply the delete operation. उसके अलावा जो 2 operations बड़े common हैं which are used in special situations, they are sorting and merging. और अभी ये पिछले 5-6 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड्स को बड़ी डिटेल से देखा है कि अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर. फॉर एग्जांपल अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू नेम, और इन न्यूमेरिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम नंबर सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर या अकाउंट नंबर. और हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर मर्जिंग का भी ऑपरेशन आपको बताया कि कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स और एरेज इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल और इनटू अ सिंगल एरे. इसके अलावा जो अदर ऑपरेशंस हो सकते हैं वो एग्जांपल है कॉपिंग के, जब आप एग्जैक्टली एक डाटा स्ट्रक्चर की कॉपी बनाते हैं दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में ऑफ द सेम साइज. एंड कंकैटिनेशन भी है कि आप 2 डाटा स्ट्रक्चर्स को जोड़कर सिंगल एक सेम डाटा स्ट्रक्चर बना लें. तो ये वाले ऑपरेशंस भी रहते हैं. हमने जो है सॉर्टिंग से पहले हमने स्टार्ट किया था लिंक लिस्ट का विद यूजिंग द लिंक्ड मेमोरी, और उसमें हमने ये जिक्र किया था कि वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी जो है दे आर नॉट एलोकेटेड कंसेक्यूटिवली इन मेमोरी, जो कि एरे के केस में होता है. बिकॉज समटाइम देयर इज नॉट इनफ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. एरेज के साथ ही होता है कि द सेकेंड एलिमेंट वाज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट, मगर उसका साइज फिक्स होता है. तो आपको हमने कहा था कि बाय अप्रॉक्सीमेशन जो है जितनी आपकी एक्सपेक्टेड उससे डबल की आप स्टोरेज करते हैं, तो उसमें वेस्टेज ऑफ स्टोरेज का बहुत ज़्यादा चांस होता है.
प्लस उसमें हमने कहा था कि इंसर्शन एंड डिलीशन वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें हमें शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, विच इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। जबकि लिंक लिस्ट में जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमें एक्सप्लिसिटली ये बताता है कि वेयर टू लुक फॉर द सेकेंड एलिमेंट, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट विल कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट एड्रेस रखेगा थर्ड एलिमेंट का, थर्ड एलिमेंट एड्रेस रखेगा फोर्थ एलिमेंट का, एंड इट विल बी कंटिन्यू कि जो n-1 एलिमेंट है वो n का एड्रेस रखेगा। अगर n चूंकि आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा तो वो उसका जो नेक्स्ट वाला है वो एम्प्टी होगा। और ये कैसे करता है कि वी विल डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट, कि हम उसके लिंक में मेमोरी एड्रेस रखते हैं ऑफ द नेक्स्ट। तो नॉर्मली जो एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट हैं उनको हम नोड भी कहते हैं। तो हमने जो है वो कुछ अर्से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। Basically, they are dynamically allocated data structures हैं which can be linked together to form a chain, और हमने देखा था कि उनकी जो dynamically allocation है that has been done from the heap. A linked list is basically a series of connected nodes या links where each node itself is a data structure. और चूंकि वो आपका डेटा और उसका जो एड्रेस है वो डिफरेंट फॉर्मेट में, इसलिए वो हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक इन द साइज एट द प्रोग्राम रन, वो ज़रूरत के साथ साथ वो साइज उसका बढ़ता जाएगा। जब उसके नोड्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डिलीशन करते रहेंगे तो वो एट रन टाइम पे उसका साइज कम भी हो जाएगा। एरे में ये प्रॉब्लम थी कि उसका हमें कम साइज जो है, मैक्सिमम साइज, वो हमें डिक्लेयर करना पड़ता था एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड, और बेसिकली उसका चूँकि स्टैटिक था तो कंपाइल टाइम पर उसका वो कोड जनरेट हो जाता था। व्हेन एक्चुअली द प्रोग्राम लोड्स इनटू द मेमोरी तो उनकी स्पेस एलोकेशन हो जाती थी, और फिर आप उस स्पेस एलोकेशन को चेंज नहीं कर सकते, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एंड एज द प्रोग्राम प्रोसेसेस। A linked list can grow or shrink in size as the program runs, और हमने कहा था कि this is possible because the nodes are in the form of a linked list and they are dynamically allocated as and when required. हमने composition भी देखी थी कि each node in the linked list contains one or more members that represents data. For example, आपके inventory records हो सकते हैं जिसमें कि customer names भी हो सकता है, addresses हैं, telephone numbers हैं, etc. so on. And you will also keep a pointer जो कि उसके साथ होगा that can point to another node of the same type. तो वो उसके अंदर आप एड्रेस रखेंगे ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो लिंक लिस्ट को हम लिंक्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज ईच नोड इन द सीरीज, बेसिकली ये जो चेन बन रही है इसके अंदर, इट हैज़ अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ये नेक्स्ट नोड का पॉइंटर इसमें पड़ा, इस नेक्स्ट नोड का पॉइंटर इसमें पड़ा, और जो सबसे आखिरी होगा उसका लिंक में या नेक्स्ट में हम इसको नल करेंगे, इट मीन्स इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन। और जो स्टार्टिंग हमारा है, जो पहला नोड का एड्रेस जो है वो हम एक हेड पॉइंटर में रखते हैं। द हेड पॉइंटर इज बेसिकली द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, और हमने कहा था कि ये जो पॉइंटर है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट लूज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लिस्ट। अगर हमने ये स्टार्टिंग एड्रेस खो दिया तो वी कैन नॉट एक्सेस द लिस्ट अगेन। और हमने ये कहा था कि हेड जो है इट विल कीप द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, और फर्स्ट नोड का जो ये लिंक पोर्शन होगा उसमें हम एड्रेस रखेंगे सेकंड नोड का, और सेकंड नोड के लिंक में एड्रेस होगा थर्ड नोड का, थर्ड नोड के अंदर होगा फोर्थ नोड का, और अगर फोर्थ नोड के आगे फिफ्थ नोड नहीं है तो ये नल होगा। बेसिकली यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर लिंक लिस्ट खत्म हो गई। और ये जो लाजमी नहीं है कि जैसे तस्वीर में तो आपको ये एक साथ पड़े नज़र आ रहे हैं, मगर ये हो सकता है कि मेमोरी में दूर दूर के बिखरे हुए हों और हम एड्रेसेस की मदद से इनको लिंक कर सकते हैं। एक्चुअल पिक्चर अगर हम इसकी मेमोरी में देखें तो हम लेट्स सपोज ये देखते हैं कि हेड के अंदर एड्रेस है सेकंड एलिमेंट का, और सेकंड के अंदर है एड्रेस 6 का, 6 के अंदर एड्रेस है 8 का, और करंट भी इस वक्त हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंटर रखा हुआ है विच इज पॉइंटिंग टू 8,
और 8 के लिंक में है 7, 7 के लिंक में है 1। अब हेड के अंदर एड्रेस पड़ा है 1062 जो कि स्टार्टिंग एड्रेस है, ये बेसिकली ये इसकी अपनी मेमोरी लोकेशन है। और हेड के अंदर जो एड्रेस है वो है 1054 जो कि एलिमेंट नंबर इस नोड का है। अगर हम 1054 को देखेंगे तो उसके अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है 2 और नेक्स्ट वन इज द लिंक और लिंक है 1051। ये देखें ये उसके ये हेड के अंदर एड्रेस है फर्स्ट नोड का विच इज 2 और उसके लिंक में है 1051, ये एड्रेस है 6 का। और ये देखें जहां पर 6 है उसका एड्रेस क्या है 1051, ये पॉइंट कर रहा है 6 को और ये उसके साथ पड़ा होगा लिंक 1063 और 1063 क्या है वो 8 का एड्रेस है, ये देखें। और करंट भी चूंकि इस वक्त इसी को पॉइंट कर रहा है तो आप ये देखें कि उसके अंदर भी कंटेंट्स क्या है 1063 और 8 के जो एड्रेस है उसके अंदर पड़ा है 7 का एड्रेस विच इज 1057 और 1057 के साथ 7 के आगे 1060 मीन्स ये एड्रेस है 1 का और 1 के आगे जो है उसका लिंक में 0 मीन्स नल, इट इज नॉट पॉइंटिंग टू। और ये आप ये देखें कि ये कंटिग्यूअस एलोकेशन नहीं है, ये मेमोरी में दूर दूर पड़े हैं एक दूसरे से। अब हम इसकी हमने कहा था कि लिस्ट की डेक्लेरेशन देखते हैं इन सी और C++। तो सबसे पहले आपको एक डेटा स्ट्रक्चर करना है फॉर द नोड्स। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जी ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर है लिस्ट नोड कुड बी यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट वेयर ईच नोड होल्ड्स अ फ्लोट। जैसे स्ट्रक्ट लिस्ट नोड इंट डेटा और लिस्ट नोड जो है इट इज अ पॉइंटर टू नेक्स्ट। The first member of the list node struct is an int called data. It is to hold the node's data. The second member is a pointer which is हम इसको कह रहे हैं next. It is to hold the address of any object that is a list node struct. Hence each list node struct can point to the next one in the list. The list node struct contains a pointer to an object of the same type as that being declared और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि it is called a self referential data structure के ऐसा data structure जो अपने आप को रेफरेंस कर रहा है। And this makes it possible to create nodes that point to other nodes of the same type. Then हमने कहा था कि we will declare a list pointer to serve as the list head. For example, list हमने कहा था कि it will pointer to head. But before you can use the head pointer, you make sure that it is initialized to null so that it marks the end of the list. Once you have done these two steps, we can declare a node structure and we can create a null head pointer. You have an empty linked list. जैसे struct list node in data list node list node is a pointer to head list head pointer। हमने डिस्कशन की थी पहले सिंगली लिंक लिस्ट की और उसकी हमने कहा था कि a node successor जो है इसको कुछ नई टर्मिनोलॉजी बता देते हैं। A node successor is the next node in the sequence. The last node has no successor, उसके आगे कुछ नहीं होता। A node's predecessor is the previous node in the sequence. और इसे हम कह सकते हैं कि जो पहला नोड होता है उसका predecessor कोई नहीं होता। और a list length is the number of elements in it. A list may be empty which can contains no elements. जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ये जो 87 का सक्सेसर जो है वो 34 है, प्रीडिसेसर कोई नहीं है। 34 का प्रीडिसेसर 87 है, सक्सेसर 78। 78 का प्रीडिसेसर 34 है और सक्सेसर 65 और 65 का प्रीडिसेसर 78 है और सक्सेसर नल है क्योंकि कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसको हम ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं?
कि आपकी ये हेड है, हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वन विच इज 67, द सेकेंड नोड डेटा वैल्यू इज 87 एंड द थर्ड इज 98. तो हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वन. तो हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंटर लेते हैं नोड पीटीआर और क्या करते हैं कि हेड का जो एड्रेस है वो नोड पीटीआर को कॉपी करते हैं. तो जब कॉपी करेंगे तो आप बेसिकली क्या होगा कि नोड पॉइंटर विल आल्सो दी कंटेन द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग नोड व्हिच इज 67. फिर उसका जो लिंक है उसको हम शिफ्ट करेंगे नोड पीटीआर में. तो उससे क्या होगा कि नोड पीटीआर पॉइंट करेगा 87 को और 87 का लिंक पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को. अब जब हम उसको नोड पीटीआर असाइन टू नोड पीटीआर नेक्स्ट के साथ करेंगे तो ये इसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा नोड पीटीआर में और नोड पीटीआर विल नाउ पॉइंट टू इसका सक्सेसर जो है 98. फिर 98 का लिंक जो है उसको हम इसमें पास करेंगे और यूं हम देखेंगे कि लिस्ट आपकी ट्रेवर्स हो गई फॉर एग्जैक्टली वन टाइम. अगर आपने इंसर्शन किसी खास वैल्यू के आफ्टर करनी हो, जैसे नोड पीटीआर 78 है और उसको आपने 67 के बाद इंसर्ट करना है, तो फाइंड द नोड फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू इंसर्ट आफ्टर. और इस केस में हम उसको 67 पे के बाद, क्योंकि सॉर्टिंग कर रहे हैं एक काइंड ऑफ, तो उसके बाद ही उसको एंटर करना चाहेंगे. तो फर्स्ट हमने क्या करना है, वी हैव टू कॉपी द लिंक फ्रॉम द नोड दैट्स ऑलरेडी इन द लिस्ट. इट मीन्स कि इसके जो लिंक है 67 का उसके अंदर एड्रेस पड़ा है 93 का. तो हम क्या करेंगे कि हमने इसका जो लिंक एड्रेस है वो इसमें देना है और जब वो इसमें हम कॉपी करेंगे तो अब 93 को 67 भी पॉइंट कर रहा है और 78 भी कर रहा है. अब हमने इसके अंदर स्टोर किसका करना है एड्रेस, तो देन वी विल चेंज द लिंक इन द नोड दैट ऑलरेडी इन द लिस्ट. तो बेसिकली अब इसमें क्या होगा कि इसका जो लिंक है वो पॉइंट करेगा 78 को और 78 का लिंक पॉइंट करेगा 93 को. उसको जब हम कॉपी कर लेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लिंक ब्रेक हो जाएगा. इट विल नाउ स्टोर द एड. अब ये देखें कि ये लिस्ट में 78 जो है वो शामिल हो गया. इसी तरह if we have to do a deletion from a node, deletion of a node from a singly linked list. So in order to delete a node from a singly linked list, we will have to change the link in its predecessor. This is slightly tricky because you can't follow a pointer backward. So deleting the node in a first node in a list is a special case because the node's predecessor is the list header. To delete the first element, we will change the link in the header. जैसे हमने 56 को डिलीट करना है तो हेडर के नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो जब हम हेडर में कॉपी करेंगे तो वो नाउ हेड विल बी पॉइंटिंग टू 67 और इसका जो इसका एड्रेस ट्रांसफर करने से पहले हम एक लोकल वेरिएबल में टू डिलीट सम अदर एलिमेंट वी चेंज द लिंक इन इट्स प्रीडिसेसर. तो बेसिकली हम इसका प्रीडिसेसर का लिंक चेंज कर देंगे. ये प्रीडिसेसर है, इसको हमने लिंक चेंज कर दिया और ये आप ये देखें कि अब आपका जो है वो 67 बाईपास हो गया. तो in a singly linked list one can move beginning from the head node to any node in one direction only, जिसको हम कहते हैं from left to right. Singly linked list को we also term as one way list. On the other hand doubly linked list, जिसको हम in short में DLL भी कह सकते हैं, is a two-way list. It means one can move in either direction
from left to right and from right to left. How this is accompanied? This is accomplished by maintaining two link fields instead of one, as we do it in the case of singly linked list. तो डबल लिंक लिस्ट की मोटिवेशंस क्या है कि दे आर यूजफुल फॉर प्लेइंग वीडियो एंड साउंड फाइल्स विद रिवाइंड एंड इंस्टेंट रिप्ले. They are also useful for other kind of link structures which requires rewind and test fast forwarding of the data. तो बेसिकली अगर हम ये देखेंगे कि each node on a list it has two pointer. One will be the pointer to the next element and other will be the pointer to the previous element. ख्याल रहे कि the beginning and ending nodes, previous and next links respectively points to some kind of terminator, physically a sentinel node or null to facilitate the traversal of the list. अगर हम तस्वीर में देखें तो अब there will be two pointers, one will be next और other previous. तो इसके previous में कुछ नहीं है फिलहाल, तो इसको हम null कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट में वैल्यू होगी इस नए नोड की, और इसके प्रीवियस में बड़ी वैल्यू होगी जो उससे पिछला एलिमेंट, और इसी तरह इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ और लिंक्स टू फॉर्म. लेट्स सी अ डबली लिंक लिस्ट. छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हेड है विच इज अ पॉइंटर टू नोड स्ट्रक्ट, और नोड स्ट्रक्ट में दो पॉइंटर के हैं और एक डेटा वैल्यू है वो 56, 67, 93 है. तो each node it will contain a value, a link to its successor if any, and a link to its processor if there is any. Each node contains a value, a link to its successor if any, and a link to its predecessor if any. The header जो है it will point to the first node in the list and to the last node in the list, or contains null links if the list is empty. तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि in a doubly linked list each item points to both its predecessor जो कि previous में होगा, and next will be pointed to the next successor. अगर हम डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट का कंपैरिजन करें तो डबली लिंक लिस्ट की एडवांटेजेस क्या हैं कि इट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन आइदर डायरेक्शन एंड इट मे बी एसेंशियल फॉर सम प्रोग्राम्स. Some operations such as deletion and inserting before a node become easier. जबकि डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर द बैकवर्ड पॉइंटर. लिस्ट मैनिपुलेशन स्लो हो जाती है बिकॉज मोर लिंक्स मस्ट बी चेंज्ड, और इट हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग बग्स. इट मींस बिकॉज मोर लिंक्स मस्ट बी मैनिपुलेटेड. डबली लिंक लिस्ट की जो डिसएडवांटेजेस हैं, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर द बैकवर्ड पॉइंटर, क्योंकि आपको पूरा रखना पड़ता है. लिस्ट मैनिपुलेशन स्लो हो जाती है बिकॉज मोर लिंक्स मस्ट बी चेंज्ड, एंड इट हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग बग्स बिकॉज मोर लिंक्स मस्ट बी मैनिपुलेटेड टू करेक्टली इंसर्ट और डिलीट एन एलिमेंट. हम डबली लिंक लिस्ट के लिए डेफिनेशन को हम उसी स्ट्रक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. इंट डेटा नोड हम कहते हैं कि इज अ पॉइंटर, उसका नेक्स्ट होगा नोड पॉइंटर प्रीवियस, और उसको दो वेरिएबल्स कह रहे हैं कि हेड है और नोड पीटीआर या नोड पॉइंटर आप कह लें. द टू नोड्स लिंक अलाउ द ट्रैवर्सल ऑफ द लिस्ट इन आइदर डायरेक्शन. आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी ट्रैवर्स कर सकते हैं. While adding or removing a node in a doubly linked list, it requires changing more links than the same operations in the singly linked list. The operations are simpler and potentially more efficient. Why? Because the nodes other than the first node. But there is no need to keep track of the previous node because during traversal or
because no need to traverse the list to find the previous node so that its link can be modified. अगर हम उसके ऑपरेशंस की बात करें तो हम आज 4 ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे. इंसर्ट नोड जो है इट विल ऐड अ न्यू नोड टू द ऑर्डर्ड डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और उसमें हम हेड और ले रहे हैं इट्स अ पॉइंटर टू नोड और आइटम इज एन इंटीजर नंबर. डिलीट नोड का प्रोसीजर जो है उसमें भी हम 2 पॉइंटर पास कर रहे हैं, एक हेड है पॉइंटर और दूसरा आइटम है इंट का. ये फंक्शन जो है इट विल रिमूव अ नोड फ्रॉम द डब्ल्यू लिंक लिस्ट. सर्च नोड में हम एक हेडर देंगे और साथ में इंट आइटम देंगे कि जिसकी बुनियाद पर हमने देखना है कि द गिवन आइटम इज प्रेजेंट इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट और नॉट. और चौथा ऑपरेशन प्रिंट का है जो कि काइंड ऑफ अ ट्रावर्सल ऑपरेशन है. इसमें भी हम 2 पैरामीटर्स भेज रहे हैं, हेड विच विल बी अ पॉइंटर एंड आइटम टू बी प्रिंट. सबसे पहले हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की इंसर्शन को देखते हैं कि आपका ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएटेड है जिसमें इस पॉइंट पर ए है, इस पॉइंट पर सी है, और हमने क्या करना है कि नई नोड को इन दोनों के दरमियान में एंटर करना है. तो वो हम कैसे करेंगे कि हम न्यू नोड को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम वैल्यूज दे देंगे और साथ में डेटा दे देंगे. और ये नोड जो है और ये नोड डॉट नेक्स्ट ये है और इसके दरमियान में हमने इंसर्ट करना है. तो आप अब यहाँ से देख लें कि वो ए ऑफ जो है नोड ऑफ जो ए है वो बजाय सी को पॉइंट करने के अब पॉइंट करेगा बी को, और बी का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा सी को, और सी का जो प्रीवियस है वो बी को करेगा और सी का नेक्स्ट जो है वो अगले एलिमेंट को करेगा. और ये देखिए कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस सिचुएशन तो ये हो जाएगा कि ए विल बी नाउ पॉइंटिंग टू बी, पी का प्रीवियस इज ए, सी का नेक्स्ट बी का नेक्स्ट जो है वो सी होगा और सी का जो प्रीवियस है उसमें न्यू नोड का एड्रेस होगा. तो अब ये देखेंगे कि वो नई नोड आपस में जुड़ जाएगी, जो लिंक लिस्ट है वो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी. अब हम इंसर्टिंग का नोड के चंद डिफरेंट केसेस देखते हैं. We will have to insert a node, new node before the current node, not at the front or rear. अभी हम एक्सट्रीम एंड दरमियान में कहीं करना है. तो हम क्या करेंगे कि न्यू नोड लेंगे जिसको हीप से क्रिएट करेंगे न्यू के साथ और उसके डाटा में वैल्यू डाल देंगे 40. और अब हम ये कहेंगे कि इसका ये नेक्स्ट है. अब इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर बेसिकली एड्रेस आना है 55 का, और ये 55 का एड्रेस किस में पड़ा है? करंट में. तो ये जो बेसिकली है करंट का एड्रेस अगर आप देखेंगे जो उसमें पॉइंट कर रहा था वो अब आ जाएगा न्यू नोड के नेक्स्ट में. न्यू नोड का एड्रेस में जब इसका है तो आप ये देखें कि ये भी अब 55 को पॉइंट कर रहा है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसके अंदर हम देंगे करंट के प्रीवियस की वैल्यू. वो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये जब इसमें कॉपी हो जाएगी तब ये इसको पॉइंट करेगा. और करंट का जो प्रीवियस है उसको अब हमने जो कॉपी कर ली उसकी वैल्यू, तो अब हम इसके जो एलोकेटेड एड्रेस है वो इसमें डाल देंगे. और आखिरी जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है कि वो न्यू नोड जो आपका है उसके प्रीवियस में एड्रेस डाल रही है एंड प्रीवियस के जो जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में डाल रही है न्यू नोड का एड्रेस. इट मीन्स कि ये ख़त्म हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर लिंक हो जाएगा. तो ये जो हटेंगे और मेरी वैल्यू देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि अब ये देखेंगे प्रीवियस नेक्स्ट में अब जब न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे तो ये अब ख़त्म हो जाएगा. और अब जो है ये 40 जो है वो 20 और 55 के दरमियान बासानी एडजस्ट हो गया. डिलीट की भी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको पहले हम इसमें देखते हैं कि जो पॉइंटर चेंजेस क्या होंगी कि इस अगर एलिमेंट को हमने डिलीट करना है तो जो इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो हमें इसके अंदर डालना है ताकि ये भी उसको पॉइंट करे. और इसका प्रीवियस चूंकि ये था इसके अंदर हमने बेसिकली इसका एड्रेस डालना है, वो हमने इधर लाएंगे तब ये बीच में से हम इसको फ्री कर सकते हैं. Node deletion from a doubly linked list. It involves changing the two links. दो लिंक्स को चेंज करना जैसे मैंने आपको समझाया. In this example, we will delete the node 67. हमने इसमें 67 नोड को डिलीट करना.
तो बेसिकली क्या है कि 56 का जो लिंक है, या इसको हम जो नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट का, उसके अंदर हम वैल्यू कॉपी कर देंगे इसकी। जब इसकी वैल्यू कॉपी करेंगे तो अब ये भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और 67 के प्रीवियस की वैल्यू हम दे देंगे इसकी वैल्यू को। जब इसकी वैल्यू को दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और अब ये जो है 93, ये प्रीवियसली 56 को करेगा। अब 67 को अब आप इसको डिलीट आसानी कर सकते हैं। We don't have to do anything about the links in the node 67. Deletion of the first node or the last node is a special case, क्योंकि उसमें आपने head को और इसको जो है वो मैनिपुलेट करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि नॉट एट द फ्रंट और रियर, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि करंट का जो प्रीवियस है, करंट का प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, उसका जो नेक्स्ट है वो बेसिकली ये है। इसके अंदर हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, करंट ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू जब इसमें कॉपी हो जाएगी तो ये बजाय इसको पॉइंट करने के आप इसको पॉइंट करेगा 55 को, और करंट का जो नेक्स्ट है करंट का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है 55 को, और वो हम ये देखेंगे कि वो 55 का एड्रेस जब इसमें कॉपी हो जाएगा तो 20 भी इसको कॉपी करेगा, और करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट के अंदर हम डाल देंगे, और करंट ऑफ नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, नेक्स्ट ये है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रीवियस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करंट के प्रीवियस की वैल्यू इसमें कॉपी करेंगे, तो नाउ ये इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आप बासानी करंट को डिलीट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, मगर उससे पहले आपने पॉइंटर्स सेट कर लिए हैं। ये मेरी आपको बार बार मैं रेकमेंड करता हूँ कि पॉइंटर्स जो हैं उनकी मैनिपुलेशन इस तरह चार्ट्स और फिगर्स की मदद से बनाइएगा, अदरवाइज ये बहुत बग्स वाले इश्यूज हैं। मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी कहा था, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अदर ऑपरेशंस जो लिंक लिस्ट पर हो सकते हैं, जैसे इंसर्शन का है, डिलीशन का है, सर्चिंग का है, वो तो बड़े साफ सुथरे हैं, बट ऑब्वियस हैं, क्लियर हैं, बट यू नीड जस्ट टू बी केयरफुल टू मैनिपुलेट द पॉइंटर्स। Sorting a linked list is just messy since you cannot directly access the nth element, so you have to count your way through a lot of other elements. उसमें प्राइवेसी नहीं है तो उसको फिर जो है ना वो काउंट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। To simplify the case of insertion and deletion by avoiding special cases of deletion and insertion at front and rear, you can use a dummy head node added at the head of the list. तो हम क्या करेंगे कि नॉन एम्प्टी लिस्ट में क्या है कि आपको एक डमी हेड है, हेड उसको पॉइंट कर रहा है, और उसका जो लिंक है वो फर्स्ट एलिमेंट जो कि जिसकी वैल्यू 10 है वो उसको पॉइंट करेगा, और 10 का प्रीवियस डमी हेड को करेगा, और 10 का जो नेक्स्ट है वो 20 को करेगा, 20 का प्रीवियस 10 को करेगा, 20 का नेक्स्ट 40 को करेगा, 40 का प्रीवियस 20 को करेगा, और उसके बाद हम ये देखें कि इसके अंदर 40 का होगा, 40 के नेक्स्ट में एड्रेस होगा 55 का, और 55 के अंदर एड्रेस होगा 70 का, 70 के प्रीवियस में होगा 55 का, और इसके अंदर 55 के अंदर एड्रेस होगा 40 का। तो अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रिएटिंग अ डमी हेड नोड एट द हेड, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वॉइड कर रहे हैं क्रिएट हेड, जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। हम हेड के अंदर एक नया नोड ले रहे हैं जो न्यू से आ जाएगा, और हेड का जो नेक्स्ट है इसको हम पास कर रहे हैं वैल्यू हेड की, तो वो इसी को पॉइंट करेगा, और इसका जो प्रीवियस है उसके अंदर हम एड्रेस दे देंगे हेड का, यानी कि उसका हेड का एड्रेस जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम ये करते हैं कि हम कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि इंसर्टिंग अ नोड एज द फर्स्ट नोड, you will insert a new node new to the empty list with current pointing to the dummy head node. तो
तो आप क्या करेंगे, न्यू का जो नेक्स्ट है उसके अंदर करंट की वैल्यू डालेंगे और करंट वैल्यू आपको कहाँ पॉइंट करवाएगी, एक यहाँ पर जो एम्प्टी जो है। और नेक्स्ट क्या है कि न्यू का जो प्रीवियस है, न्यू का ये है, इसका जो प्रीवियस है that will be equals to न्यू। वो जो न्यू के साथ होगा, न्यू का जो प्रीवियस है वो पॉइंट करेगा हेड को। करंट का जो प्रीवियस है, करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है और उसका जो है वो जब आप जे देंगे तो उसको पॉइंट करेगा। और न्यू का जो प्रीवियस है, प्रीवियस अब चूंकि इसको पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट चूंकि ये बन रहा है तो उसके अंदर हम न्यू की वैल्यू दे देंगे। इंसर्टिंग अ नोड एट हेड, इंसर्ट अ नोड न्यू आफ्टर डमी नोड एंड बिफोर द करंट नोड। तो करंट 20 को पॉइंट कर रहा है, हेड डमी को कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, न्यू क्रिएट किया, उसके अंदर डाटा ले लिया। अब न्यू का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम करंट का एड्रेस देंगे। जब करंट इसको पॉइंट कर रहा है तो ये अब ये भी इसको पॉइंट करेगा। और इसका जो न्यू का जो प्रीवियस है उसको हम वैल्यू दे रहे हैं किसकी, वो हम दे रहे हैं इसकी न्यू की। और जब हम न्यू को देंगे तो वो अब इसको पॉइंट करेगा। और न्यू का जो प्रीवियस है और उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम न्यू का एड्रेस डाल देंगे। अब हम तीसरा केस लिखते हैं कि व्हेन यू हैव टू इंसर्ट अ नोड इन द मिडल। तो उसमें हम ये देखें इन द मिडल और बिफोर करंट, के इन द मिडल करना है और बिफोर करंट करना है। तो न्यू का जो नेक्स्ट है उसके अंदर करंट डाल देंगे तो इसको पॉइंट करेगा। न्यू के प्रीवियस में हम डालेंगे करंट का प्रीवियस जो कि इसको पॉइंट कर रहा था वो अब इसमें आ जाएगा, इसको भी पॉइंट कर, ये भी इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है। और उसके बाद करंट का जो प्रीवियस है उसके अंदर हम न्यू का एड्रेस देंगे। करंट का जो प्रीवियस वो ऐसे लिंक हो जाएगा। और जो न्यू का प्रीवियस है उसके अंदर हम नेक्स्ट का एड्रेस देंगे तो वो इसका एड्रेस यहाँ ट्रांसफर करेगा, विच इज सेम एज इंसर्ट फ्रंट। हम इंसर्ट कर रहे हैं नोड न्यू एट रियर विद करंट पॉइंटिंग टू द डमी हेड। तो न्यू का जो नेक्स्ट है, न्यू के नेक्स्ट में हम जब करंट की वैल्यू जब न्यू के नेक्स्ट में डालेंगे तो ये भी डमी हेड को पॉइंट करेगा। और न्यू के प्रीवियस में हम डालेंगे करंट के प्रीवियस की, करंट ये है उसका प्रीवियस ये है। तो वो बेसिकली वो जो पहले वैल्यू इसको पॉइंट हो रही थी वो अब इसमें आ जाएगी। और करंट के प्रीवियस में हम डालेंगे न्यू का एड्रेस तो वो अब इसको पॉइंट करेगा। और न्यू का जो प्रीवियस है, न्यू का प्रीवियस ये है और इसका जो नेक्स्ट है वो ये है, इसको हम न्यू के जरिए कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि वो बासानी इसके अंदर, और न्यू का जो प्रीवियस है वो इसको पॉइंट कर रहा है और इसका जो नेक्स्ट है वो ये है। उसके अंदर जब आप ये कॉपी करेंगे तो ये इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। तो जो पहले वो डमी हेड को कर रहा था वो अब उसको मजीद पॉइंट नहीं करेगा। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड देख लें तो इंसर्ट नोड हम दो ले रहे हैं, एक वो नोड है और हम दो जो है वो नोड टाइप के वो ले रहे हैं जिसमें न्यू और करंट। न्यू जो है वो हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया, उसके डाटा में आइटम को सेव कर दिया और करंट को हमने असाइन कर दिया हेड ऑफ नेक्स्ट को। अब हम इसमें क्या करेंगे, वाइल करंट इज लेस देन नॉट इक्वल्स टू हेड, आप क्या कर रहे हैं, करंट ऑफ डेटा इज लेस देन का डेटा इज लेस, तो आप करंट को करंट से नेक्स्ट में कर देंगे, एल्स आप ब्रेक कर देंगे। तो उसके बाद जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट न्यू का जो है नेक्स्ट उसमें करंट डाल देंगे, न्यू के प्रीवियस में करंट का प्रीवियस, करंट के प्रीवियस में न्यू डाल देंगे एंड करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में न्यू की वैल्यू असाइन कर देंगे। इसी तरह हम देखते हैं डिलीटिंग अ नोड एट हेड। हमने डमी नोड के बाद इस वाले नोड को डिलीट करना है
तो करंट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब इसको नोट करने से पहले हमने ये पॉइंटर्स को ये इनके रिमूव करके इनको इस तरह लेके आना। तो करंट का जो प्रीवियस है वो ये है, और ये जिसको पॉइंट कर रहा है ये, उसका नेक्स्ट बनता है ये। इसके अंदर आपने क्या स्टोर करना है, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू। और करंट का नेक्स्ट, चूंकि इसके अंदर एड्रेस करंट इसको पॉइंट कर रहा था तो इसका एड्रेस ये 20 इधर आ जाएगा। तो आप ये देखें कि ये लिंक ब्रेक होके ये इस पे चला गया। और फिर करंट का जो नेक्स्ट है, ये करंट है, करंट का नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस ये वाला। इसके अंदर हमने क्या करना है कि करंट के प्रीवियस में जो वैल्यू पड़ी है वो इसमें कॉपी करेंगे, तो ये लिंक जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जब हम करंट को डिलीट करेंगे तो ये लिंक लिस्ट जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। डिलीटिंग अगर आपने मिडिल से करनी है, वही हम 2 आइटम लेंगे, तो करंट भी ले लेंगे। तो हम करंट को हम क्या कर रहे हैं कि हेड और आइटम भेज रहे हैं, एंड वी वांट टू सर्च द नोड। वो हम सर्चिंग करके उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे। तो जब ये आपको बेसिकली जब उसको आइटम मिल जाएगा तो करंट के अंदर उसकी वैल्यू पड़े, वो पॉइंटर होगा कि वो इसको पॉइंट कर रहा है। हम एग्जांपल ये ले रहे हैं कि हमने इस 40 को डिलीट करना है, डाटा मेंबर जो है। अगर करंट नल नहीं है तो करंट नल नहीं है। तो करंट का जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट ये है। इसके अंदर एड्रेस किसका कॉपी करना है, करंट के नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट 55 को पॉइंट कर रहा था, वो इधर पॉइंट हो जाएगा, तो ये डबल हो गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करंट का नेक्स्ट भी इसको पॉइंट कर रहा है और करंट के प्रीवियस का नेक्स्ट भी इसको पॉइंट कर रहा है। और करंट का नेक्स्ट ये है, इसमें जिसका एड्रेस पड़ा उसके जो प्रीवियस है वो ये है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि करंट का जो प्रीवियस का एड्रेस है जब आप उसे कॉपी करेंगे तो वो 55 भी अब इसको 20 को कर रहा होगा। तो अब आपके पॉइंटर सेट हो गए, तो यू कैन सेफली डिलीट दी करंट। अगर आपने एंड पर करना है डिलीशन, ये सबसे आसान है रियर पे, तो आप वो इसी तरह लेंगे कि करंट ऑफ प्रीवियस जो है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर हम इसके नेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे। इसके नेक्स्ट का एड्रेस ये है। नेक्स्ट चूंकि पहले इधर पॉइंट कर रहा था, करंट का नेक्स्ट चूंकि वो अब यहां पे पॉइंट कर रहा था, तो वो जो है उसको हम करंट ऑफ प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल देंगे, तो वो भी इसको पॉइंट करेगा। और करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट ये है, ये यहां पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो प्रीवियस है वो ये है। प्रीवियस में 70 का एड्रेस पड़ा है, तो उसके हम करंट के जब प्रीवियस देंगे तो ये बजाय इसको पॉइंट करने के ये अब इसको पॉइंट करेगा। और उसके बाद हम करंट को डिलीट कर देंगे, तो वी विल सी कि ये लिस्ट अपनी जगह बरकरार रहेगी। सर्चिंग का नोड बड़ा आसान कोड है कि सर्च नोड हेड और आइटम। तो नोड करंट हम लेंगे, उसको हम हेड ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू दे देंगे कि वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू हेड। हम क्या करेंगे, करंट का डाटा अगर एक आइटम के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे करंट, नहीं तो हम क्या देखेंगे कि अगर करंट का जो डाटा है वो लेस देन आइटम है तो हम करंट के अंदर वैल्यू प्लेस कर देंगे करंट ऑफ नेक्स्ट की, ताकि वो नेक्स्ट की तरफ चला जाए। एल्स हम उसको ब्रेक कर देंगे और आप लूप से बाहर आएंगे तो आपको इसका एड्रेस मिल चुका होगा। एंड देन अगर नहीं मिला तो हम नल रिटर्न कर देंगे, एंड देन वी फाइनली वो सर्चिंग मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने पूरी लिस्ट को पेंट करना है तो उसमें हेड है, वाइल हेड जो है करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट पॉइंट कर रहा है डमी को, तो डमी का जो नेक्स्ट है वो पहले एलिमेंट को वो हम करंट में डाल देंगे। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब तक करंट नॉट इक्वल्स टू हेड तो हम उसको करंट का डाटा बताएंगे, और करंट विल बी असाइन टू करंट ऑफ नेक्स्ट। फिर हमने मेन प्रोग्राम भी एक लिखा हुआ है वॉइड मेन, इसमें 2 पॉइंटर ले रहे हैं हेड और टेम्प। तो क्रिएट हेड हमने हेड भेजा, हेड क्रिएट हो गया, प्रिंट किया, हेड पे कुछ भी नहीं आया। फिर हमने इंसर्ट नोड किया है हेड में,
जो इसको पॉइंट कर रहा है, और 3 आप ये देखें, और उसके बाद प्रिंट हेड किया वो 3 प्रिंट हो गया है। फिर हमने एक उसमें और इंसर्शन की हेड की, वो 5 हो गया, और प्रिंट किया जब उसको लिस्ट को तो वो 3 और 5 हो गया है। फिर हमने इंसर्ट नोड एट द हेड किया है 2 3 5, और उसको फिर हमने बेसिकली 2 को इंसर्ट किया है, और जब प्रिंट किया तो वो 2 3 5 प्रिंट हुआ है। फिर हमने इंसर्ट नोड किया है 7, तो वो 7 को जब हमने इंसर्ट किया हेड में तो वो आपको देखें कि वो यहाँ पर मिल गया, प्रिंट किया तो 2 3 5 को प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हमने 7 1 और 8 को किया, और उसके बाद हमने प्रिंट किया हेड को, तो फिर वो उसके बाद 1 2 3 और जो है वो 1 जो कि रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 5 7 8 ये प्रिंट हो जाएंगे, और उनके इंसर्ट वो कर रहे हैं। तो डिलीट हेड जो है वो हेड में से 7 को निकाल देगा। तो आप ये देखें 7 से निकला है, 7 पास किया था, डिलीट नोड इसमें से ये निकल गया, तो बाकी ये लिस्ट बच गई। फिर हमने उसमें से 0 को भी निकाला, 0 मौजूद नहीं था तो तो प्रिंट हेड किया, तो अब हमने जो है वो ये प्रिंटिंग आ गई रिजल्ट। उसके बाद हमने क्या किया कि सर्च नोड हेड 5, वो चूँकि हमें वो नहीं मिला, तो इफ टाइम नॉट इक्वल टू नल तो डेटा इज कंटेन्ड इन द लिस्ट, वो चूँकि मिल गया है, और एल्स नहीं है तो डेटा इज नॉट कंटेन्ड इन द लिस्ट। और ये आपको सैम्पल आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम भी दिखा दी मैंने। डब्ल्यू लिंक लिस्ट की कम्प्लेक्सिटी जो है, वर्स्ट केस में इंसर्शन एट हेड और टेल इज ऑलवेज कांस्टेंट ओ इन द ऑर्डर ऑफ 1, डिलीशन एट आइदर एंड इज ऑल्सो बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ 1, एलिमेंट एक्सेस स्टिल जो है बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n है। अब हम एक और सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट विद 2 पॉइंटर्स, विद 2 पॉइंटर्स, 1 फॉर हेड अनदर फॉर रियर। तो हम जब इसकी क्रिएशन करेंगे कि हेड को किया न्यू नोड और टेल को किया न्यू नोड, उसके अंदर एड्रेस आ गया, हेड के नेक्स्ट में हमने डाल दिया टेल का एड्रेस, टेल भी इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और टेल के प्रीवियस में डाल दिया एड्रेस, हेड एड्रेस की वैल्यू को जब उसमें कॉपी की तो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और हेड के जो प्रीवियस है वो नल है। इंसर्टिंग का हम देखते हैं कि इनटू डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हेड इसको डमी को पॉइंट कर रहा है, और डमी का नेक्स्ट ए को पॉइंट कर रहा है, ए का प्रीवियस डमी को पॉइंट कर रहा है, ए का नेक्स्ट सी को पॉइंट कर रहा है, सी का नेक्स्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लास्ट एलिमेंट है सी का प्रीवियस ए को पॉइंट कर रहा है। हेड इज पॉइंटिंग टू द डमी, करंट इज पॉइंटिंग टू द ए, एंड टेल इज पॉइंटिंग टू द सी। इस कोड को हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब पहला होगा न्यू नोड की जब एग्जीक्यूशन होगी, तो आप यह क्या करेंगे बेसिकली कि वो न्यू नोड का वो उसमें क्रिएट हो जाएगा, उसकी वैल्यूज चली गई और उसका एड्रेस न्यू नोड में आ गया। न्यू नोड में के जो प्रीवियस है करंट की जो वैल्यू, करंट जो एड्रेस इसको पॉइंट कर रहा है, तो जब हम उसके प्रीवियस में डालेंगे तो अब ये भी बी इसी को पॉइंट कर रहा है। और करंट का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ये जब हम वैल्यू बी के यानी कि न्यू नोड के नेक्स्ट में डालेंगे तो वो बी सी को पॉइंट करेगा। अब क्या होगा कि न्यू नोड का जो प्रीवियस जो कि ये था, इसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर पहले वो पॉइंट कर रहा था सी को, तो जब हम उसको एड्रेस देंगे न्यू नोड का अपना, तो वो बजाय उसको पॉइंट करने के इसको पॉइंट करना शुरू करते हैं। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यू नोड का वो इधर है, उसका जो प्रीवियस है वो ये है, इसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं किसकी, न्यू नोड इटसेल्फ का जो एड्रेस है, तो वो सेल्फ का एड्रेस देंगे तो वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। अब ये लिंक बेसिकली टूट गया है। आप उसके बाद अब क्या होगा कि करंट जब आप न्यू का वैल्यू देंगे तो करंट बजाय उसको पॉइंट करने के आपको ये बता रहा है कि करंटली आप इस वक्त लिस्ट के इस हिस्से में। इसी तरह हम एक डिलीशन का भी देख लेते हैं एट दी मिडल, कि हमने इस नोड को ओल्ड नोड को डिलीट करना है। ये ओल्ड नोड है, करंट की वैल्यू हमने दे दी ओल्ड नोड, तो अब ओल्ड नोड भी इसी को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है बेसिकली कि ये हमने इसको यहां से लिंक को तोड़ना है, जो इसको पॉइंट कर रहा था वो अब हमने इसमें डालना है।
वो हम ये देखें कि ओल्ड नोड का ये है, उसका जो प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने एड्रेस किसका दिया, ओल्ड नोड के, इसका तो वो इसके अंदर कॉपी हो गया। और ओल्ड नोड के नेक्स्ट में उसका जो प्रीवियस है उसके अंदर वैल्यू किसकी कॉपी की, ओल्ड नोड के प्रीवियस की, तो वो यहां पर आ गया। ये लिंक टूटा और ये इसको पॉइंट होना शुरू हो गया। ये आप देखें कि ये उसको असाइन हो गया, ये लिंक टूट गया। और करंट को हम क्या देंगे, ओल्ड नोड प्रीवियस, ओल्ड नोड इसको पॉइंट कर, उसके प्रीवियस की वैल्यू जब करंट को देंगे तो क्या होगा, करंट उसको पॉइंट करेगा। और आखिरी में क्या है ये देख ले, जब हम डिलीट करेंगे ओल्ड नोड को तो वो गायब हो जाएगा एंड योर लिस्ट इज अगेन मेंटेन्ड है। अब इंसर्शन एट द हेड और इंसर्शन एट द टेल या डिलीशन एट द हेड, डिलीशन एट द टेल इज वेरी इजी। हम अगर टेल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम सिंपली ये करेंगे कि टेल को जब हम दे देंगे टेल का प्रीवियस, तो वो टेल इसको पॉइंट करेगा। और क्या करेंगे कि फिर उसके बाद टेल ऑफ जो है एक वो ओल्ड नोड इसको पॉइंट करेंगे, टेल को हम इधर कर देंगे और इसके इस एड्रेस में नल कर देंगे। उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये वहाँ से डिलीशन हो जाएगी। अगर हमने हेड पे मज़ीद इंसर्शन करनी है हेड पे, तो हम एक नया न्यू नोड लेंगे और उसका जो एड्रेस है न्यू नोड का, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हेड के नेक्स्ट की वैल्यू न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे तो वो उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके जो है उसके वो प्रीवियस में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि इसके नेक्स्ट के उससे, तो ये यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगी हेड के थ्रू। अब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें एक और इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम ये भी देख सकते हैं कि आप बजाय ये कि इसका जो प्रीवियस है वो नल को करें, आप उसको लास्ट एलिमेंट के साथ जोड़ दें। और जो लिस्ट का आखिरी एलिमेंट जो पहले नल होता है तो उसको अगर आप पहले हेड के साथ जोड़ देंगे तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ इसकी इंसर्शन के बाद वो इंसर्शन, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट जो कि आज मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। तो उसका बाद ये जो इसकी जो कोड है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, आई लेफ्ट इट फॉर यू पीपल टू डू एज एन एक्सरसाइज। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है, इसको हम सर्कुलर क्योंकि सर्कल में सारा कुछ है, बट हेड इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू दी हेड ऑफ द लिस्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज हमने जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो है वो हमने उसको ज़रा डिटेल से देखा है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। बेसिकली अब आप उसमें जो आपका जो नोड है वो अपने से आगे का भी नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी रखता है, पिछले का भी रखता है। तो इसमें सिर्फ हमें जो बेनिफिट मिलता है कि ट्रैवर्सिंग इजी हो जाती है कि हम चाहें तो हेड से भी लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। और जब हमने हेड और टेल दो पॉइंटर्स रख लिए तो हम टेल से भी इसकी बैकवर्ड भी प्रोसेसिंग बड़ी आसानी से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ऑपरेशंस आज देखे कि हाउ टू इंसर्ट, डिलीट एंड ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, उसका कोड भी आपको दिखाया और आपको पूरा वो मैंने फिगर्स की मदद से उसका कॉन्सेप्ट समझाया कि हाउ टू, सिर्फ पॉइंटर्स की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि हाउ टू मैनिपुलेट द पॉइंटर्स एंड देन इट्स ऑल इजी। इम्प्लीमेंटेशन कोड हमने सी लैंग्वेज में देखा। इसके अलावा हमने वो शुरू में जो फर्स्ट मर्जर पोर्शन था उसमें हमने सिर्फ एक पॉइंटर रखा होता है हेड का। फिर मैंने डब्ल्यू लिंक लिस्ट विद 2 पॉइंटर्स के साथ भी आपको बताई कि 1 पॉइंटर इज हेड, द अदर इज द टेल। और उसमें हमने इंसर्शन एंड डिलीशन के ऑपरेशंस देखे। उसमें जो है ट्रैवर्सिंग इज़ वेरी इजी, आप चाहें तो हेड के ज़रिए लेफ़्ट टू राइट कर लें या फ्रॉम टेल जो है वो आप राइट टू लेफ़्ट भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। सर्चिंग भी इज़ क्वाइट ईजी। फिर हमने इन दी एंड सर्कुलर लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट आपको दिया विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। और उसका मैंने कहा कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ लेफ्ट टू यू एज एन एक्सरसाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।